event on 19th of November. The first of this webinar series is today, which is addressing the issue of sustaining whatever we have achieved in making open defecation free all our villages. Today in our program, we have 4 extremely important personalities who are taking important role in making the SBM I and SBM II successful, and also taking forward, as I was mentioning, about the second generation issues. So first, we welcome Mr. Wakil Ahmed Siddiqui. He is Program Director of Water for People. He is a qualified civil engineer and has rich experience of working in this sector for more than 27 years. Also, we have Mr. Ritu Raj, Indian Administrative Service Officer. He is currently working as the Jila Parishad CEO in Bhopal. And recently, Madhya Pradesh has got the first prize in such Sarvekshan Gramin 2022 in Western Zone. And Mr. Rituraj had played critical role for this achievement for the state of Madhya Pradesh. Madhya Pradesh got the first prize in that zone. We also have Dr. Rupesh Kumar Rathore. He is currently working as state coordinator in the state of Chhattisgarh, and he is engaged in this particular assignment since 2010. He has more than 20 years of experience in the wash sector, and he is having a PhD degree in rural development and sanitation. We welcome all of you. We start with a brief presentation from our colleague, Amulya Miriali, who would just take through a few slides and present the current status of sanitation in India. After that, we will open up the discussion with our panel members. I also forgot about mentioning about our 4th panel member, Mr. Ganesh Parmar. Hopefully he has joined by now. He is an active sanitation committee member from a village called Kali Bilod in Indore district of Madhya Pradesh. And Kali Bilod has the distinction of, constructing one of the first fecal sludge management plans in India. And he took active role in making that particular plan successful. We welcome all of you and now hand over to my colleague Amulya. Thank you so much, Biswanath. Good afternoon, everyone, and good evening. My apologies. Sabhi ko namaste. May I request Poorna ji to please present? Is it visible? Yes, it is. Thank you so much, Poorna ji. So what better way to start off the webinar series that WaterAid India is hosting for this year's World Toilet Day of the year 2022 than to discuss about open defecation free status of India, especially when this year's theme is about making the invisible visible, wherein the World Toilet Day team is trying to connect the interlinkages between groundwater, which is often unseen, and the correlation with sanitation. कि किस तरीके से प्रॉपर सैनिटेशन ना मैनेज करते हुए ग्राउंड वाटर को कैसे हम पोल्यूट कर देते हैं और प्रदूषित कर देते हैं, उसके बारे में चर्चा करना और इसके बारे में वर्ल्ड लेवल पे डिस्कस करना इस वर्ल्ड टॉयलेट डे की मेन मुद्दा है. So thank you so much everyone for joining in with us, and this is the first webinar of a series of 3 webinars that we are hosting every Friday, this one, next one, and hopefully on the eve of the World Toilet Day or on the World Toilet Day.
Maybe please go to the next slide. Before we go on to discuss anything about open defecation free and its sustainability, let us try and understand open defecation free का मतलब क्या होता है. This is a status that is given to a locality or a country or a state jidhar there is no fecal matter present in open premises, in public premises, jidhar fecal matter, human fecal matter को अच्छी तरीके से और scientific तरीके से dispose किया जाता है. That means there is no visible presence of fecal matter in any sort of public spaces, and that there is efficient and 100% usage of toilets and appropriate superstructures के साथ-साथ substructures भी. And whilst the component of constructing toilets and their substructures is a one big component of ensuring open defecation free status, which India has achieved in 2019, rural India especially, has declared 100% open defecation free status, and over 6 lakh villages in the country have also declared themselves as open defecation free. But as we move forward, just constructing the toilets is not sufficient. It is extremely crucial that the work that has been done by constructing the toilets is sustained, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं इस पूरे वेबिनार में. In order to take that forward, the Swachh Bharat mission has been initiated by the government of India in 2014, and in the period of 2014 to 2019, the whole process of making India open defecation free has been done by means of constructing over 11 crores of toilets in rural India. And to take that forward, in 2020, the phase 2 of Swachh Bharat mission has been launched, जिसका main मुद्दा है open defecation free plus करना to ensure that there is safe solid and liquid waste management in all rural areas across the country, to ensure that हर जगह में जिधर भी हर गांव में जिधर टॉयलेट कंस्ट्रक्ट किया गया है उधर हर घर में नल हो, उधर हर घर में जो शौचालय यूज करने वाले हैं उनको नल की एक्सेस हो. एंड ऑल्सो इसके साथ साथ विजिबल क्लेनलीनेस के बारे में है, इसके साथ साथ प्रमोटिंग हैंड वॉश, स्पेशली जिस पैंडेमिक से हम अभी अभी बाहर आ रहे हैं उस सो emphasizing on the importance of hand washing, on menstrual waste management are all crucial parts of ensuring this open defecation free plus status. And this is one of the efforts by the Swachh Bharat mission and the government of India to ensure that India's open defecation free status is continued forward, which is why we are here discussing about open defecation free sustainability, and especially in the context of rural areas jidhar access की बहुत ज़्यादा दिक्कत है. How do we take forward? What is the current scenario? How can we take this forward? And what has worked? What has not worked? What are the challenges? What are the gaps that we are seeing are some of the key areas that we need to discuss. And also, as the Swachh Bharat mission is a time-oriented program, post 2024, जब phase 2 of Swachh Bharat mission खत्म हो जाएगा, what is the next steps? How do we ensure the sustainability of it? What are the roles of different stakeholders and everything are some of the key components that we are going to discuss in today's webinar. Next slide, please. So as we can see, from late 90s, from 1990, which is only 30 years ago, rural India has only 5% coverage of toilets at household level, which we call as individual household latrines. And by 2019, October 2nd, over 99.9% of all rural households in India have been provided with access to household functional toilets, which is no less than a miracle and a scheme that is done on such a big scale as nobody else. So India has made a significant amount and exponential progress in terms of making sure that all its population is their public health is maintained properly, that the environment is safe, that the water is prevented from pollution, and that the livelihoods of the people is promoted and everything as well. Next slide, please. So as you can see, as Biswanath ji has also mentioned, all the villages in India by 2019 have declared themselves as open defecation free and have provided, and India has gotten the status. Although that is the case, there are some, the government of India and the Swachh Bharat mission has also acknowledged that there is a very, very minority amount of population, possibly a 0.01 or a 0.1% of population, which has been left behind. So as part of the phase 2 of Swachh Bharat mission, all the households that were left behind
are also considered and are ensured that they are provided with household tap connections. And currently, there are over 387 working rural fecal sludge treatment plants across the country, one of which, and the first one in rural areas, is Kale Bilod, of which we have a representative who's going to talk to us further about the role of fecal sludge management in ensuring India's open defecation free status, as to how we can all work towards, and we need to work towards, on different fronts to make sure that India is continuing its open defecation free status. Along with that, what are all the different components? These are some of the components that we are going to discuss, and I will hand it over to Biswanath to take this forward. Thank you. Thank you very much, Amulya. I think Amulya has set the ball rolling extremely well for this discussion. So I would like to come to Mr. Wakil Ahmed Siddiqui first. Mr. Siddiqui, you have been working for Water for People, and because of your work, you got a sense of the status on pan-India basis, and also, in a sense, you would have kind of neutral view about the ODF status and challenges. So I would like to know from you, with your experiences, so what has been the challenges for, number one, achieving the ODF status, and number two, sustaining the huge achievement which we have undertaken under this Swachh Bharat Mission program. Thank you. Thank you, Mr. Vishwanath and Amulya, for setting up the tone of the webinar. First of all, I'm thankful to the WaterAid team who has giving me the opportunity to share my views on the Swachh Bharat mission or the sanitation program which is going on in India. So based on the past experience before joining to the Water for People, I was directly looking after the program at the state level in Uttar Pradesh and other state like called Chhattisgarh. So based on the past experiences, I'm just trying to put my views in this one. तो पहला जो आपने बताया ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है ग्लोबली जो हम लोगों ने एक काम किया भारत ने कि इतना बड़ा टॉयलेट कंस्ट्रक्शन करके और उसको लोगों को ओपन डेफिकेशन फ्री करने का काम किया. नॉट ओनली द रूरल पार्ट, इट आल्सो इन द अर्बन पार्ट. तो एक तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा है. इसके साथ साथ जब भी हम कोई चीज़ बड़ी करते हैं तो उसमें ज़रूरत होती है कि उसके सस्टेनेबिलिटी को लेके हमको एक लेवल नेक्स्ट लेवल पे सोचना पड़ता है कि हाउ वी कैन सस्टेन दीज थिंग्स. तो मेरे पास एक छोटा सा स्टडी है वर्किंग विद वाटर फॉर पीपल. वी हैव कंडक्टेड अ स्टडी इन शिवहर. तो उसके बेस पे मैं 2-3 चीज़ें बताना चाहता हूँ कि अभी भी शिवहर में जब हम लोगों ने लास्ट ईयर एक स्टडी कराई थी तो निकल के आया था कि अराउंड 38% हाउसहोल्ड्स आर डिपेंडेंट ऑन द पिट्स and 60% on septic tank. So this is a good achievement. We can say that community is moving towards the septic tank, but the challenge is the septic tank are unscientifically constructed. As Amulya was telling about the groundwater table or the water related to the water supply schemes, lot of toilets are still within the 10-meter range of the drinking water source. So there may be possibility of polluting the drinking water facilities in the coming years. So those are the few challenges which we are still observing, especially in the case of pit toilet. Other than the pit toilet, we need to focus on the fecal sludge management, which is one of the important component under the SBM-II. So especially when we talk about the fecal sludge management part, so there is still, we need to develop the proper mechanism of collecting, segregation and decomposition or final disposal of the fecal sludge management, which has to be an integrated part of the SBM-II. So these are the few challenges. और इन challenges को जैसा आप बोल रहे हैं कैसे address कर सकते हैं, so we have to think about jointly. We need to think about the mechanism which can be successfully implemented in these geographies.
हम लोगों ने अभी जो काम किया हुआ है, अगर मैं फीकल स्लज मैनेजमेंट में बात करूं तो इसमें टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और उसके बाद में बिहेवियर चेंज और लोगों को अवेयरनेस करना एक बड़ा बड़ा दिक्कत की बात है। क्योंकि जब भी कोई गांव से बाहर की तरफ जाता है तो वहां देखता है कि लोग पिट लैट्रिन का यूज नहीं कर रहे हैं और सेप्टिक टैंक बना रखा है, तो दे कम बैक टू द विलेज विद द माइंड सेट के हमें अपने घर में सेप्टिक टैंक बनाना है, और वो सेप्टिक टैंक का कंस्ट्रक्शन अपने हिसाब से और अनट्रेंड मैशंस के साथ में कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है कि वो एक तरह से होल्डिंग टैंक बन के रह जाता है, और जब कभी भी उसकी कोई मैकेनिज्म सेट नहीं होती है तो बड़ी चैलेंजिंग होती है। तो वो एक सिस्टम डेवलप करना, लोगों को अवेयर करना और सेप्टिक टैंक की टेक्नोलॉजीज पे बात करना। इसके अलावा जो सबसे बड़ी एक जरूरत की बात है कि हमें प्रॉपरली उसके डिस्पोजल की मैकेनिज्म को सेट करना। अभी मध्य प्रदेश में इंदौर की अगर बात करें तो वहां पे इस तरह का काम हुआ है, और आंध्र प्रदेश में हम लोग बात करें, वारंगल एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे अर्बन एरिया में उन्होंने प्रॉपर मैपिंग की, सेसपूल्स के साथ करेक्ट किया, उसके अकॉर्डिंगली हमारे FSTP बनाए गए जिससे कि उसका प्रॉपर मैकेनिज्म हो सके। एक चीज और मैं इसमें ऐड करके फिर अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा कि जब हम SBM-II में क्लीन विलेज की बात करते हैं तो ना सिर्फ हम उसमें टॉयलेट कंस्ट्रक्शन या फीकल स्लज मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, अदर देन दैट वी आर आल्सो फोकसिंग ऑन द वेस्ट मैनेजमेंट which is also a part of SBM-II and that needs to be properly covered under the project। तो उसमें गार्बेज डिस्पोजल पे, सॉलिड पे हम बात कर लेते हैं, लिक्विड पे बात कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक हमको डिस्कस करना पड़ेगा कि अदर देन दीज जो प्लास्टिक वेस्ट है, मेटल वेस्ट है, उसका कैसे डिकम्पोजिशन हो सकता है। इन सब चीजों को लेके थोड़ा सा सोचने की जरूरत है, थोड़ा काम करने की जरूरत है। एक एग्जांपल में भी हम बता सकते हैं कि हम लोगों ने अभी एक सेटअप डाला है, एक स्पेशली टेक्नोलॉजी पे काम शुरू किया है जिसमें हम बात करते हैं कि पिट लाइफ एक्सटेंडर बनाने की बात कर रहे हैं। अगर ऐसे पिट बने हुए हैं जहाँ पे, जिसमें जनरली देखते हैं कि हम सेप्टिक टैंक के अंदर अराउंड मोर देन 80% वाटर होता है, और उसमें फीकल स्लज जो होता है वो बहुत कम होता है, तो वाटर की वजह से टैंक जल्दी भर जाता है। तो देन विद सपोर्ट ऑफ द टेक्निकल यूनिवर्सिटी वी हैव डेवलप्ड अ मैकेनिज्म, जिसको अगर उस पर इंस्टॉल कर दें थोड़ी देर के लिए पिट के ऊपर, तो उसके पानी को निकाल के बाहर कर देते हैं, और आफ्टर टेस्टिंग दैट वाटर we the test report came that that water is safe for the environmental purposes और agriculture purposes। हम उसको कहीं भी ओपन में डाल सकते हैं। पानी जब निकल जाता है तो उसकी लाइफ एक पिट के एटलीस्ट 5 टाइम्स बड़ी हो जाती है। तो इन सब चीजों पे अभी और बात करने की जरूरत है। ये कुछ चैलेंजेस हैं जिनको हमको आगे चल के इनको एड्रेस करना पड़ेगा अगर हमको 24-25 तक अपने देश को क्लीन करना है। ऑल ग्राम पंचायत और नगर पंचायत या जिला पंचायत जिनको क्लीन रखना है। तो these are my thought I have put in the table in front of all the panelists. We'll discuss further if anything else needs to be discussed. Thank you very much, Vakil Saab. Now I would like to go to Mr. Rituraj. So, Mr. Rituraj, you have been working in the state of Madhya Pradesh, and we know Madhya Pradesh is one of the largest states in India, and it has achieved the goal of Swachh Bharat mission in big way. And you getting the first prize for cleanliness survey for rural area is a big, achievement itself, and it talks about the effort you have put there. So we would like to know the kind of challenges you face there, particularly maintaining the ODF status, and also from your experience at the, at the CEO of Jila Parishad in Bhopal, the kind of challenges you face to address the second generation issues pertaining to sanitation. Thank you, Biswanathji, for providing me this opportunity to speak to this wonderful panel. Yes, it was indeed a great experience for us as Bhopal received the first prize in the West Zone category. There were a lot of challenges initially when we realized that there was this Swachh Swarvekshan Gramin 2022 was being conducted, and it was one of a kind
where this was happening. Earlier it used to happen for urban areas, and so this kind of survey and inspection on various parameters was decided for rural areas as well. And the challenging part for rural area as compared to urban area is because the area is quite vast. It's not concentrated in a single place. There are lots of gram panchayats and villages scattered, and the households are also in Madhya Pradesh particularly. They live in some kind of scattered manner. So the biggest challenge I would say to meet the criteria for ODF plus was the geography, where we need to cater to the need of all the people. Certainly, the ODF plus sustainability is a very challenging task, where we need to meet both the solid waste management and the liquid waste management criteria, as well as how to dispose of all the waste. So initially we had started with waste collection through rickshaws, hand rickshaws. Then we shifted to e-rickshaws in most of the gram panchayats. Now we have almost 140 e-rickshaws flying in the gram panchayats. We have around 187 gram panchayats. Out of that, almost 140 to 150 e-rickshaws are there in these gram panchayats. So this has catered to the need of the gram panchayat, where they're able to easily collect waste. So this was a mechanism where we had to set up, because normal cart pulling was not being functional enough. Also, we needed to maintain the human resource that is required to I think there has been a talking. Yes, we can hear you now. Hello. Yeah. Yes, we can hear you. For this, yeah. So as I said, for this solid waste management plan, first we started to provide the infrastructure that was required in this in the district. So we started with the e-rickshaws. We went with battery rickshaws because obviously diesel cost is high. So we needed to provide a sustainable model. So e-rickshaws were there for waste collection. Then we had civil works, that everything that was required for waste collection, segregation sheds we required in every gram panchayat. We constructed that. So we had set up this civil work that is required for solid waste collection. So after that, we moved after the HR part that is required. So the biggest constraint in this thing that we faced was our sources of income, where the gram panchayat needed to maintain this HR to collect waste in each of the gram panchayat. So from the last I would say from last 1 year, we have been focusing parallelly on developing source of revenue from for the gram panchayat. So we have started collecting taxes in the gram panchayat quite aggressively, where property tax, cleanliness tax, water tax, and other kinds of business taxes that gram panchayat can collect. We have been focusing on it. So we have been trying to build this corpus of revenue for the gram panchayat, where they are able to maintain the human resource that is required to operate and sustain this waste collection mechanism. The solid waste collection mechanism also, we have added technology to it. Now we have almost all the rickshaws are GPS aided, and so we are able to also monitor the progress, movement, and the daily waste that is getting collected in the district. So this is also one of a kind that is happening in the rural areas. It does happen in the urban areas.
So in rural areas, we are able to do that, and through this, we have been able to monitor the waste collection. For this waste collection, we have moved a step ahead, and we have set up a material recovery facility in our district for the rural area where the entire waste is getting processed. And we are looking, and the challenge here for this MRF facility is obviously we need some better technology where we are able to generate revenue out of this waste collection. So we are working out on various processes so that we are able to get some revenue and able to sustain this waste collection mechanism, and also be able to should be able to provide some revenue to the gram panchayats from where we are getting this waste. Next sustainable agenda was our what liquid waste management. So liquid may we have been focusing mostly on making the soak pits and leach pits, and we have extensively used our 15 finance commission funds and our SBM funds in order to implement this scheme. And I would say ki almost 20 kilometers of our nali with soak pits have been constructed in the district, and all these nalas are interlinked with some or the other soak pit and the leach pit in the district. We have also come up with some mechanism of waste stabilization ponds, WSPs, and DWAT system. Around 5 DWAT system is operational in the district, and around 4 or 5 WSP is operational in the district. So we are trying to innovate some better technology also in order to provide better liquid waste management. I would say the challenge in this thing is to keep it operational, maintain it, and also we need a lot of HR to operate this entire system that is getting implemented in the district. So mostly what we face is a few technological challenges and the HR problem that we are facing, because lot of revenue is required to operate and sustain this process. The entire processes required a lot of lot of people interaction, lot of awareness campaign that is required, and also we required a lot of support from our public and staff that we needed to sustain it. Obviously, maintaining ODF plus status is a tough challenge, and what we are facing a challenge is another level is of fecal sludge management as of now. The technology and the process that we need to sustain. Most of the pits, though here are made of septic tanks, we need to move forward in a manner where we are able to operate these septic tanks. And obviously, Bhopal is thinking about few technologies where the cleaning of this septic tank needs to be taken care of, and single pits toilets needs to be converted into twin pits, and a scheme is being operationalized in this manner also. Obviously, these are the few challenges that we need to take care of in coming times to take care of this ODF status. Thank you so much. Thank you so much, Mr. Rituras, for explaining in detail about all your efforts. Particularly, I like the components of innovation, particularly, introduction of e-rickshaws, which is green technology, plus your effort of generating revenue at the PRI level, which is extremely important, I think, for sustainability point of view. Now, I would like to turn to Mr. Rupesh Rathur from Chhattisgarh. So, Mr. Rathur, from you, we would also like to know similar kind of thing, but I think I would request, for sake of not repeating many things, two aspects, particularly from your side. One is, we know Chhattisgarh is a diverse state in terms of the topography. You have the extreme kind of hilly kind of terrain in undivided Bastar region, and you have plains in the central part of Chhattisgarh. So how did you manage to achieve your targets in that kind of difficult situation? Again, northern part is by and large
hilly undulating terrain. Second part I would like to know from you is there are lots of talk now happening at the ministry level about retrofitting toilets. So what is the level of problem of existing toilets for which now we are talking about retrofitting the toilets? So these two aspects, if you can cover along with other points, it will be extremely good for us. थैंक यू विश्वनाथ जी एंड थैंक यू WaterAid मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि हम छत्तीसगढ़ में जो स्वच्छ भारत मिशन के लिए काम कर रहे हैं उसको हम आप लोगों के साथ में शेयर कर सकें। छत्तीसगढ़ जैसे अभी आपने बताया कि बहुत डाइवर्सिफाइड है और हिली टेरेन भी है। इसमें जब हम फेज 1 में इसमें स्टार्ट किए थे काम, उस समय हमारे साथ में काफी चैलेंजेस थे, not only with the terrain but also for the defunct toilets. We were having around 10 lakhs plus defunct toilets at that time जब ये मिशन लॉन्च हुआ था। इसके अलावा हमारे साथ में जो एक और चैलेंज है जो कि LWE एरिया का हमारे साथ में चैलेंज है, जहाँ पे कि एक्सेसिबिलिटी भी एक बहुत बड़ा इशू है। तो इन सारी कंडीशंस को हम लोगों ने ध्यान में रखा, जिसमें हमने छत्तीसगढ़ को 3 पार्ट में देखा। एक नॉर्थ पार्ट हो गया जो सरगुजा डिवीजन है, दूसरा जो सेंट्रल छत्तीसगढ़ है और तीसरा है बस्तर डिवीजन। जो बस्तर डिवीजन है उसमें जो कुछ ऐसा एरिया है जहाँ पे हम जा नहीं सकते, कंस्ट्रक्शन बहुत मुश्किल था, वहाँ के लिए हम लोगों ने वॉलेंटियर्स उसी एरिया से हमने सेलेक्ट किया, उनका कैपेसिटी बिल्डिंग किया और उनके माध्यम से हम लोगों ने लोकल मटेरियल से कुछ टॉयलेट्स कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करी। ऑल्दो हम लोग उसमें बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे, सो हम लोगों ने दूसरा अपॉर्चुनिटी इसको यूज किया कि जो मूवेबल बॉय टॉयलेट्स होते हैं, जो प्री फैब्रिकेटेड बॉय टॉयलेट्स हैं, उस एरिया में उस तरह के प्री फैब्रिकेटेड बॉय टॉयलेट्स हम लोगों ने प्रोवाइड करके उनको एक टॉयलेट किस तरीके से होता है, क्योंकि वहाँ पे एक्सेस उतना होता नहीं है, लोग उतने अवेयर भी नहीं है। तो अभी एक हम लोगों ने एक कोशिश की है कि उनको टॉयलेट्स अवेलेबल मुहैया कराया जाए जिससे कि वो लोग टॉयलेट का यूज कर सके। बाकी जो दूसरा एरिया हमारा जो नॉर्थन छत्तीसगढ़ है, वहाँ पे मोस्ट ऑफ द टॉयलेट्स जो है वो लीच पिट टॉयलेट्स ही हमारे बने, और सेंट्रल छत्तीसगढ़ में भी लीच पिट टॉयलेट्स ही हमारे यहाँ पर बने हुए हैं। अराउंड 70-80% जो टॉयलेट्स हैं वो लीच पिट टॉयलेट्स ही छत्तीसगढ़ में बने हुए हैं, और सेप्टिक टैंक्स टॉयलेट धीरे धीरे अब कन्वर्ट हो रहे हैं। सो नाउ इट इज बिकमिंग अ चैलेंज कि जो लीच पिट टॉयलेट्स हम लोगों ने फेज 1 में प्रमोट किया था, अब धीरे धीरे लोग जैसे देखते हैं कि शहरों में सेप्टिक टैंक्स टॉयलेट होते हैं और उनको अब टॉयलेट का नीड भी समझ में आ गया है, सो नाउ दे आर कन्वर्टिंग देयर लीच पिट टॉयलेट्स इनटू अ सेप्टिक टैंक टॉयलेट। और जैसे कि हम जानते हैं कि सेप्टिक टैंक टॉयलेट्स के साथ में दूसरी प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड है, जैसे कि उसके साथ में वो सोक पिट नहीं बनाते हैं, साथ ही उसके साथ में एक और प्रॉब्लम एसोसिएट है कि वो सही तरीके से सही टेक्नोलॉजी से उसको नहीं बनाते हैं, वो एक जस्ट लाइक अ कलेक्शन टैंक टाइप का एक बड़ा सा टैंक कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। सो वो भी एक प्रॉब्लम होता है, और उसके ऊपर ही बना लेते हैं, उसमें कहीं से डिस्लेजिंग के लिए स्पेस नहीं छोड़ते हैं। तो ये काफी सारे इश्यूज हैं जो उसके साथ एसोसिएट होते हैं, और जो ओवरफ्लो होता है इसी वजह से वो अनट्रीटेड जो फीकल स्लज है वो पूरे गांव में और नालियों में ओपन ड्रेन में वो छोड़ देते हैं। दूसरा जो इसके साथ में प्रॉब्लम हो रहा है कि उसको सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए लेके जाना, क्योंकि बहुत कम मात्रा में और बहुत ही स्कैटर्ड सेप्टिक टैंक्स बने हुए हैं, सो उसको डिस्लेजिंग करना और उसको किसी एक जगह पर लेकर के आना, उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी एक बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सो अभी जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम ODF के सस्टेनेबिलिटी को कैसे इंश्योर करें और इंटीग्रेटेड वे में कैसे हम फेज 2 में इसको सैनिटेशन क्लीन विलेज की जो कल्पना है उसको हम साकार करें। सो जो फर्स्ट जो पार्ट है ODF सस्टेनेबिलिटी, उसमें हम लोग जो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कह रही है कि रेट्रोफिटिंग में जाना है। सो सिंगल पिट टॉयलेट्स और जो उसको ट्विन पिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, और जो सेप्टिक टैंक्स टॉयलेट है उनके साथ में हमको सोक पिट
बनाना है। सो इसमें हमारे यहाँ पे जैसे कि मैं शुरू में ही बताया कि लीच पिट और ट्विन पिट टॉयलेट्स सबसे ज्यादा तादाद में बने हुए हैं। केवल सेप्टिक टैंक टॉयलेट अभी कन्वर्ट हो रहे हैं, लीच पिट टॉयलेट्स कन्वर्ट हो रहे हैं सेप्टिक टैंक्स में। सो उनको अभी हम आइडेंटिफाई करके और उनके पास में एक सोक पिट बनाएंगे। दूसरा, अभी हम जो फीकल स्लज के इसके मैनेजमेंट के लिए हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले ऐसे विलेजेस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं जहाँ पर कि ज्यादा नंबर्स में सेप्टिक टैंक्स टॉयलेट बने हुए हैं, उनका क्लस्टरिंग करके और उनके बीच में एक फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट जो है प्लांटेड ड्राइंग बेड टेक्नोलॉजी से हम लोग करना चाह रहे हैं, जैसे कि हमने वाटरएड के हेल्प से एक पतोरा ग्राम पंचायत में किया भी हुआ है। और वहां पर हम लोगों ने जैसे CSR के हेल्प से एक डिस्लज व्हीकल भी प्रोवाइड किया हुआ है और वो काफी सक्सेसफुल मॉडल रहा है और वो सेल्फ सस्टेनेबल वे में काम कर रहा है। तो इसी तरीके के और हम हर ब्लॉक में इस साल हम लोग अराउंड 70 इस तरीके के प्लांट्स हम इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं और इस तरीके के क्लस्टर्स को हम आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं जहां पर कि शहर के पास के जो सेप्टिक टैंक्स टॉयलेट बने हैं, जो क्लस्टर्स में बने हैं, जो दूर है, जो जहां पर कि वो क्लस्टरिंग पॉसिबल नहीं है, वहां पर हम उनके टॉयलेट्स के साथ में उनके टॉयलेट की टेक्नोलॉजी को कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। यदि किसी विलेजेस में जैसे 5-10 ही ऐसे 5 या 5 और 10 सेप्टिक टैंक्स ही है तो उसकी टॉयलेट टेक्नोलॉजी को कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा हो सकता है। तो इस तरीके से अभी हम फीकल स्लज मैनेजमेंट को लेकर के छत्तीसगढ़ में काम कर रहे हैं। इसके अलावा हम जो इसके सस्टेनेबिलिटी को लेकर के जो कम्युनिटी टॉयलेट्स हैं नीड बेस्ड, वो सभी पब्लिक प्लेसेस पे हम बना रहे हैं। और छत्तीसगढ़ ने एक यूनिक मॉडल एक इंट्रोड्यूस किया है जिसमें कि हम कम्युनिटी टॉयलेट के साथ में हम शॉप्स भी, यूटिलिटी शॉप्स भी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। फ्रंट में हम 3 to 4 शॉप्स कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ये शॉप्स को हम ऑक्शन कर रहे हैं और इससे आने वाले रेवेन्यू से उस टॉयलेट का मेंटेनेंस कर रहे हैं। और इस टॉयलेट को हम गूगल मैप में भी इसको जियो टैग कर रहे हैं ताकि पब्लिक को वो आसानी से एक्सेसिबल हो सके, सो दैट कि हम जो ओपन डेफिकेशन के जो भी और चांसेस है उसको रिड्यूस कर सके। न्यू फैमिलीज जो भी बन रहे हैं उनके लिए एक ओपन प्लेटफॉर्म है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी दे रखा है। हम भी इसको बहुत पॉपुलेट कर रहे हैं ताकि हर एक व्यक्ति उसमें अपना एप्लीकेशन दे सके, ताकि सभी के पास में टॉयलेट हो। और इस तरीके से हम ODF की सस्टेनेबिलिटी को एड्रेस कर रहे हैं। दूसरा जो पार्ट है वो है ODF प्लस। ODF प्लस के लिए हम लोग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में जो स्टेट ने पॉलिसी डेवलप किया हुआ है कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो हम कलेक्ट करेंगे और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को कैसे प्रॉपरली मैनेज करना है इसके लिए हम कम्युनिटी को एजुकेट करेंगे ताकि वो हाउस होल्ड लेवल पर ही अपना जो है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को वो मैनेज कर ले। और चूंकि जब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इसके साथ एसोसिएट नहीं होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के साथ में, सो उसको डेली कलेक्शन का इशू नहीं होता है, जो कि वेजेस के इशू लास्ट में आते हैं कि अगर डेली कलेक्शन होता है तो वेजेस का इशू आता है, इतना वेज हम दे नहीं पाते। तो इसके लिए हम लोगों ने नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को ही कलेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें हमको कम वेजेस देना पड़ता है। हम सप्ताह में 1 या 2 बार ही उसको वेस्ट को हम कलेक्ट करने जा सकते हैं। तो उस तरीके से कलेक्शंस कर रहे हैं, तो उससे हमको कम वेजेस देना पड़ रहा है और उसकी वजह से हम उसको कहीं ना कहीं एक सस्टेनेबल सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल की तरफ लेकर के जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जो एक सबसे अच्छा काम हुआ है वो है बायोडिग्रेडेबल जो काउ डंग वेस्ट मैनेजमेंट का, जिसमें कि हम पूरे कंट्री में पायनियर रहे हैं। हम लोगों ने अराउंड 300 बायोगैस प्लांट्स एस्टेब्लिश किए हुए हैं और कम्युनिटी बेस्ड बायोगैस प्लांट्स हैं। अभी उससे 5 से 10 फैमिलीज बेनिफिटेड हो रही है। और इसके अलावा अभी जो स्टेट गवर्नमेंट का एक फ्लैगशिप स्कीम है जिसमें कि यहाँ पे आप भी इसके लेकर के अवेयर होंगे कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट इज परचेसिंग द काउ डंग एट द कॉस्ट ऑफ 2 रुपीज पर kg। सो अभी हमने उसके साथ इंटीग्रेट करके और इंस्टीट्यूशनल बेस्ड बायोगैस प्लांट्स हम इंस्टॉल कर रहे हैं, जिससे कि जो काउ डंग है जो गवर्नमेंट परचेस कर रही है उसको वर्मी कंपोस्टिंग करते हैं, उसके पहले वो हमारे बायोगैस डाइजेस्टर में उस काउ डंग को डाल देंगे और पास के जो स्कूल है उसको मिड डे मील में वो जो बायोगैस है वो मिलेगा। और
जो स्लरी है उससे वापस वो खाद बना के उसको सेल कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड मॉडल जो कि हम छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ ने एमएचएम पर भी काफी अच्छा काम किया है। हमने फेज 1 से ही एमएचएम को साथ में लेकर के चले हैं। ये भी ओडीएफ के सस्टेनेबिलिटी और ओडीएफ प्लस में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जब वेस्ट कलेक्शन के लिए जाते हैं तो वहाँ पे हमको सैनिटरी नैपकिन्स के भी जो वेस्ट सैनिटरी नैपकिन्स है उनका भी इशू हमारे साथ में आता है। सो छत्तीसगढ़ में हमने जो एसएचजीज हैं उनको स्वच्छाग्रही के रूप में एंगेज किया हुआ है। वो ही स्वच्छाग्रही हमारे आईसी अवेयरनेस कैंपेन का भी काम करते हैं, वही स्वच्छाग्रही हमारा हाउस टू हाउस वेस्ट कलेक्शन का भी काम करते हैं, और वही स्वच्छाग्रही जो है हमारे एमएचएम को लेकर के भी काम करते हैं, लोगों को अवेयर करने का। और इसमें हम जो आईसी का जो इंसेंटिव मनी है वो हम इन्हीं स्वच्छाग्रही एसएचजीज को देते हैं। ये बहुत अच्छा मॉडल है जो हमारे यहाँ पर वर्क कर रहा है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ ने जो दिव्यांग फ्रेंडली टॉयलेट्स को भी लेकर के काम किया है। इसमें भी WaterAid से इसमें काफी टेक्निकल सपोर्ट हमको मिला था। इसमें हमने CSR WaterAid के साथ में मिल करके हमने 10 डिस्ट्रिक्ट्स में इसमें दिव्यांग फ्रेंडली टॉयलेट्स पे काम किया है, और छत्तीसगढ़ ने दिव्यांग फ्रेंडली पॉलिसी भी, इसका टॉयलेट्स के लिए पॉलिसी भी बनाया हुआ है, और ये काफी सक्सेसफुल रहा है। इसमें हमने इस तरीके से यूनिवर्सली एक्सेसिबल कम्युनिटी टॉयलेट्स कंस्ट्रक्ट किए हैं विद द हेल्प ऑफ CSR। तो वो भी काफी सक्सेसफुल रह रहा है, जिसमें कि हमने हर तरह की दिव्यांगता को कैटर करने वाला टॉयलेट कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की है। साथ ही जो थर्ड जेंडर के लिए भी उसमें हमने स्पेशल प्रोविजंस किए हुए हैं। इट्स अ वेरी गुड टॉयलेट, जो कि इससे हम उनको भी एड्रेस कर पाए। और जैसे कि जो फेज 1 में गैप आ गया था सस्टेनेबिलिटी को लेकर के, कि एक जैसे टॉयलेट्स बन गए थे जो कि दिव्यांग फ्रेंडली नहीं थे, तो इस पायलट प्रोजेक्ट के दौरान हम लोगों ने उनके टॉयलेट्स को भी दिव्यांग फ्रेंडली टॉयलेट्स में कन्वर्ट करने की कोशिश की है। अभी जो challenges हम लोग फेस कर रहे हैं, lot of construction activities are going on in the rural area, especially solid and liquid waste management related activities are going on. We are facing the operation and maintenance issues. अभी ये है कि इतना सारा स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट हो रहा है, इंडिविजुअल टॉयलेट्स बन गए, कम्युनिटी टॉयलेट, स्कूल टॉयलेट और सेग्रीगेशन शेड। इसके लिए ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कैसे होगा, इसको लेकर के सोचने की जरूरत है, क्योंकि छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट में यहाँ पर हम लोगों से यूजर चार्ज बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। देयर आर अपॉर्चुनिटीज। अभी जो 15th FC का टाइट ग्रांट है, हम लोग उसके थ्रू इसको टेकअप कर रहे हैं, सो दैट धीरे धीरे करके लोगों का थोड़ा सा बिहेवियर में ये क्लीनलीनेस का सेंस आएगा, और एक जो हाउस टू हाउस कलेक्शन एक्टिविटीज स्टार्ट होगी, ये लॉन्ग टर्म पे डेफिनेटली लोगों के सेंस में ये आएगा कि हमको इसको अब सस्टेन करना है, तो उसके बाद में हम यूजर चार्जेस वगैरह भी लगा सकते हैं। ये मेन कुछ एक्सपीरियंस शेयरिंग था जो मैं छत्तीसगढ़ की तरफ से करना चाह रहा था, और यदि इसमें कुछ और होगा तो बताएंगे सर। थैंक यू वेरी मच। आपने पूरा होलिस्टिक वे में जो आपका अप्रोच है छत्तीसगढ़ में उसको विस्तार से बताए यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। अभी हमारा साथ में है गणेश पवार जी। इन्होंने जो काली बिलवट का बात अभी हुई थी आपका ज्वाइन करने का पहले, और अमूल्य जी ने बताई कि रूरल इंडिया में सबसे पहले FSTP प्लान था जो आपका गांव में लगा था, इंदौर डिस्ट्रिक्ट में, मध्य प्रदेश में। तो इन्होंने उसमें बहुत सख्ती से भागीदारी दिए हैं। तो आपको सवाल करने के पहले गणेश जी, हम जस्ट ब्रीफली 1 मिनट करीब लेंगे। जो आपका FSTP प्लान बना है आपका गांव में, उसको दिखाएंगे। हमारा कॉलीग्स पूर्णचंद्र या अमूल्य थोड़ा दिखाएंगे, उसके बाद आपके पास हम सवाल लेके आएंगे। We just wanted to showcase the work done there, so that when we ask questions, it can we can relate easily there.
Just give us few seconds. Our colleagues are also, placed in different locations, so coordination is a big problem. For example, Purna Chandra is based in Bhubaneswar. Amulya is based in Hyderabad. I'm conducting this from New Delhi. So Vishwanath, yeah. if I can come in for 1 second. Yeah. गणेश जी, आपकी माइक म्यूट पे है, तो अगर आप बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो। जी ये स्लाइड विजिबल है अभी? यस, स्लाइड भी अभी हम बात करेंगे जो हमारा फीकल स्लज मैनेजमेंट, फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट हम लोगों ने कल्लीबिल्लोर में किया है। गणेश जी का भागीदारी इसमें बहुत अच्छी तरह से रहा है, पहले प्लानिंग से भी रहा है और इम्प्लीमेंटेशन उसके बाद भी। अभी भी गणेश जी इसमें लगे रहे हैं कि ये कैसे पूरा फंक्शनल रहे और इसका लाभ हम लोग अच्छी तरह से उठा पाए। हम लोग जाएंगे कुछ इसका पिक्चर देखने के लिए। ये है हमारा जो फीकल स्लज मैनेजमेंट प्लांट है, उसका लेआउट प्लान है। ये जो एरिया पंचायत से मिला है, ये पूरा एरिया का, ये एरिया जो ज्योग्राफी है, ये ज्योग्राफी को देख के ये प्लांट का डिजाइन किया गया है। दरवाजे पॉन्ड, वो एक पॉन्ड जैसा कुछ पत्थर काट के लिए थे लोगों ने, उसके बाद एक पॉन्ड जैसा था, वो पॉन्ड को यूटिलाइज किया गया, उसको भी डिजाइन के अंतर्गत किया गया। और वहाँ पे भी एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ट्रीटमेंट यूनिट है, रूरल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ट्रीटमेंट यूनिट, और उसी कैंपस में ये पूरा प्लांट को बनाया गया। ये प्लांट को जो बनाया गया, जो सोच रहा प्लांट को बनाने का, जितना सारा आएगा इनपुट, ये ट्रैक्टर लोड या ट्रक लोड फीकल स्लज में आएगा, जो सेप्टिक टैंक से निकल के आएगा, ये दैट विल कम टू द प्लांटेड ड्राइंग बेड। पहले ये प्लांटेड ड्राइंग बेड में आएगा। इससे पहले जो इनलेट है, इनलेट में एक स्क्रीनिंग चैम्बर है, अगर कुछ सॉलिड मटेरियल रहेगा वो निकल जाएगा। उसके बाद प्लांटेड ड्राइंग बेड में जाएगा, प्लांटेड ड्राइंग बेड से फिर प्लांटेड ग्रेवल फिल्टर में जाएगा। ये जो ड्राई रहेगा सॉलिड, वो ड्राई स्लज निकल जाएगा, कंपोस्ट हो जाएगा। बाकी जो पानी रहेगा इसमें, ग्रे जो ब्लैक वाटर रहेगा, ब्लैक वाटर जाएगा प्लांटेड ग्रेवल फिल्टर को, उसके बाद पॉलिशिंग पॉन्ड को जाएगा, और उसके बाद ट्रीटेड वाटर को हम यूज कर सकते हैं। ये है जो एरियल व्यू, जो पूरा प्लांट का एरियल व्यू है। ये जहाँ पे इनलेट है, जो स्क्रीनिंग चैम्बर है, फीकल स्लज का इनलेट है, और इनलेट के बाद ये जाता है प्लांटेड ड्राइंग बेड। ये प्लांटेड ड्राइंग बेड वहाँ पे जो है एक चालू होगा, तो मतलब एक साथ में 3 चालू होगा, एक रेस्ट में रहेगा। बाकी जब इन्हें रोटेशन, ये पूरा सब सारे प्लांटेड बेड चालू होगा, तो जो भी आएगा स्लज, उसको हम प्लांटेड बेड में डालेंगे उस हिसाब से। उसके बाद ये प्लांटेड ग्रेवल फिल्टर के थ्रू जब आएगा, जो लिक्विड आएगा, लिक्विड प्लांटेड ग्रेवल फिल्टर के थ्रू फ्लो करेगा, तो इसका जो बीओडी और सीओडी रेट जो होता है मारात्मक कंपोनेंट ग्रे वाटर में, उसका वो कम हो जाएगा। ट्रीटेड whenever the water will pass through this process, ये कम हो जाएगा, और ये ट्रीटेड होके ट्रीटेड वाटर फिर पॉलिशिंग पॉन्ड को जाएगा, और पॉलिशिंग पॉन्ड से हम इसको आगे ले जा सकते हैं। ये एक विजिट रहा है, क्योंकि जैसे अमूल्या जी पहले बताए हैं, ये इंडिया का फर्स्ट एफएसटीपी है, रूरल एफएसटीपी। तो उस समय ये विजिट रहा, कम्युनिटी का विजिट रहा। कम्युनिटी इसमें उनका भागीदारी भी चाहिए होता है, तो इसके लिए उनका विजिट रहा, और उनको हम लोग वहां पे लेके गए। थैंक यू विश्वनाथ। Thank you very much, Purna Chandra Mohanty, my colleague from our Odisha office. तो गणेश जी, आपसे हम जानना चाहेंगे आपका ये अनुभव कैसे रहा। आपका पास जब WaterAid वाले पहले आए होंगे, तब आपको एफएसटीपी सुन के सफेद हाथी जैसा लगा होगा, और इसको आपने इम्प्लीमेंट करने में क्या दिक्कतें फेस किए, और अभी क्या आपका इश्यूज है, उसके ऊपर आप थोड़ा चर्चा करेंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। सर धन्यवाद पूरी टीम को, इस कार्यक्रम के लिए आप लोगों ने मुझे जोड़ा,
और वाकई आपने जैसे बोला इसमें कि सफेद हाथी जैसे ही मुझे ये दिखाई दे रहा था। जब एफएसएम के बारे में बात हुई तो एफएसएम क्या है ये कुछ पता नहीं था। ये लोग आए इससे पहले मेरे को पेपर के माध्यम से पता चला था कि वाटर एड इंडिया में कई 17 स्टेट के साथ फिकल स्लश ट्रीटमेंट में काम करता है। छोटा सा आर्टिकल मैंने पढ़ा था तो मेरे मन में भी ऐसी जिज्ञासा रही कि हम लोग ये फिकल स्लश क्या है। फिर हमने हमारे जिला पंचायत में हमारी नेहा मीना करके आईएएस ऑफिसर है उस समय मैंने उनको बोला मैम ये फिकल स्लश ट्रीटमेंट के बारे में। बोले नहीं वाटर एड की टीम है जो इस पे काम कर रही है और वो पूरे इंदौर जिले में जहाँ भी उनको उचित जगह लगी कि वो काम करेंगे। तो कुछ जानकारी मुझे मिली, मुझे वाटर एड के लोग मिले तो मैंने उन लोगों से बातचीत करी कि क्या क्या होना है क्या नहीं होना है। जब बात करने के बाद तो सर ही पकड़ लिया कि यार ये इतना बहुत क्रिटिकल होगा कैसे होगा। फिर उन लोगों ने बहुत छोटी छोटी चीजों को बहुत छोटी छोटी 4-6 महीने हम लोग उस पूरे क्षेत्र में पूरा भ्रमण करे और उनने एफएसएन क्या है सारी चीजें बताई। तब मुझे आवश्यकता लगी कि ये बहुत जरूरी है। और चूंकि मैं आपको बता दूं सभी लोगों को कि पीतमपुर औद्योगिक क्षेत्र के पास से जुड़ी हुई पंचायत है मेरी। 40 से 50 हजार लोग वहाँ निवास करते, पूरा अर्बन टाइप का एरिया। और ये इस टाइप के सेफ्टी टैंक की बहुत ही बुरे हाल थे। जब ये बन गया और इससे बहुत सारी समस्याएं, पर अल्टीमेटली बनने के बाद हमें बहुत सारा आज अभी सुकून है कि ये कई चीजें धीरे धीरे वहाँ होने लगी है। जी सर आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो? हाँ जी आवाज आ रहे हैं। जी सर। हेलो? हाँ आप बोलिए। सर इसको बनाने के लिए मोस्टली बड़े चैलेंज थे। एक तो औद्योगिक विकास निगम के पास जितनी भी शासकीय भूमि थी वो सब औद्योगिक विकास निगम है, आसपास एक्टिवेन की पूरी लैंड है और यहाँ पर पहले भी प्लांट बना हुआ। और मैं धन्यवाद देता हूँ वाटर एड की टीम को कि ने ये जब चयन करा जगह चयन करने में मेरे को कई प्रशासनिक तौर पे बहुत सारी परेशानी आई। फिर मैं कलेक्टर साहब से एसडीएम साहब से सबसे मिला कि मेरे को ये इसकी पंचायत को बहुत जरूरत है और ये इस टाइप का प्लांट अगर बन गया है तो अपना जो क्षेत्र बढ़ा और जो सेप्टी टैंक फुल होके नालियों में बह रहा है जिससे लोगों की तबीयत खराब और ये बहुत एनवायरमेंट खराब हो रहा है। ये अपने को बहुत एडवांटेज। तब उन लोगों ने धीरे धीरे प्रशासन की तरफ से विजिट करवाया, ये आपका जमीन नहीं है शासकीय जमीन एक्टिवेन में। फिर हमने कोशिश करके वो जमीन अलॉट करा के फिर उस पे काम चालू करवाया। काम चालू करा के धीरे धीरे बहुत सारी परेशानी आई उसमें, कैसे होगा क्या होगा। कम्युनिटी लेवल पे छोटी छोटी मीटिंगें करवाई लोगों से कि फिकसलेस ट्रीटमेंट क्या है, लोगों को पता ही नहीं था। फिर उनको बोलता है कि सेप्टी टैंक भर जाते तो कई बार इसको खाली करने में प्राइवेट एजेंसियां यहाँ पर बहुत सारा पैसा है और जिनको आवश्यकता होती है वो लोग इसको बुलवाते हैं और वो कई रोड साइड नाले में या रोड साइड में खेतों में डाल देते हैं जिससे एनवायरमेंट खराब होता है। तो गणेश जी मैं आपको रोकना चाहूंगा। आपने बहुत चैलेंजेस फेस किए, उसके बाद आपने अभी डायरेक्ट मतलब सक्सेसफुली उसको इम्प्लीमेंट किए। ये तो हम ज़्यादातर लोगों को पता है और इसका काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन भी हुआ है और मेरे ख्याल में काफ़ी टेलीविज़न प्रोग्राम में भी आया है। तो आपसे ये जानना चाहूँगा क्योंकि अगर आपका ये ग्रामीण क्षेत्र में और स्मॉल टाउन्स में पहला ऐसा एफएसटीपी है इंडिया के लिए, तो आपका अनुभव से अगर अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोशिश कर रहे हैं ऐसा हजारों गांव में एफएसटीपी बनाने के लिए, तो आपका अनुभव का आधार पे आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि आपको ये करना चाहिए, ये करने से दिक्कतें हैं और मुझे मालूम नहीं ये अभी भी हम 100% सक्सेसफुल बोल के डिक्लेयर कर सकते कि नहीं कर सकते आपका एफएसटीपी को। फिर भी आपका अनुभव से अगर आप बता सकते हैं कि एफएसटीपी को सक्सेसफुल बनाने के लिए 1 2 3 4 ये करना चाहिए, अगर ये आप एडवाइस दे सकते हैं हमको तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। सर मैं इसमें आपसे इस बारे में बोलना चाहूंगा कि एफएसटीपी जैसे स्वच्छ भारत मिशन जब से आया एक छोटे टॉयलेट से घर घर में टॉयलेट बन गई। इसकी आवश्यकता
ग्रामीण क्षेत्र में और रूरल क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत आवश्यक है। कई बड़े गांव हैं जहां पर सेफ्टी टैंक बने और अभी का जो परिदृश्य है उसमें लोग ज्यादातर सेफ्टी टैंक बनाते हैं, लेकिन इसको जब भरने के बाद इसका सही प्रॉपर ट्रीटमेंट डिस्लेजिंग कैसे होगा, इसके लिए ये आवश्यक है। और मैं आने वाले लोगों को ये बोलूंगा कि जितनी भी परेशानी है, जैसे अभी डिस्लेजिंग के लिए काली विलोद की बात करी आपने, ये बोला कि कैसे इसको सक्सेसफुल को आप इसमें डिस्लेजिंग के लिए एक विकल्प की बहुत आवश्यकता थी। अभी हम वर्तमान में भी कई सीएसआर से बात कर रहे हैं या वाटरएड से भी हमने निवेदन किया था कि किसी भी कंडीशन में हमको सबसे बड़ा चैलेंज रहा कि डिस्लेजिंग के लिए ये गाड़ी नहीं होने से क्या होता था कि जो प्राइवेट सेक्टर में जागीरदारी प्रथा थी वो लोग उसमें इन्वॉल्व थे और वो बहुत ही काफी परेशान करते थे, और उससे उनके प्राइवेट लोगों को जोड़ने से क्या हो रहा था कि कॉस्ट ज्यादा होने से लोग उसको खाली करवाने से कतराते हैं। अगर ये जहां भी इस टाइप का प्लांट बने वहां पर पहले से इसको प्लान में डिस्लेजिंग के लिए एक व्हीकल की व्यवस्था आवश्यक रूप से करी होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर, धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप प्रोग्राम में रहिए, सो आपका लिए हो सकते हैं ऑडियंस से सवाल आए तो हम उसको आगे लेंगे। आप मुझे लगता है कि आप अभी रोज जर्नी में है, तो फिर भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका खुद का चैलेंजेस का बावजूद आप यहाँ पे ज्वाइन किए। So now we are left with about only 30 minutes of time and we don't want to extend the time. So my suggestion would be that I will ask one question each to the panel members and would request to give the response very briefly, so that if we are left with about 15 minutes of time, then we can take up questions from the audience. I think it is important to take question from the audience as well. तो वकील जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, so you have been observing at very micro level and analyzing from the point of view of perfection at the community level and detailing out the observations. And you also mentioned about conducting a survey in Shehor district of Madhya Pradesh. And one of the things you were saying that only about 60% of the users is actually using septic tanks. And when it comes to water supply to the toilets, most of the toilets are having the existence of the toilet is actually in the proximity of the water supply. Thereby, there is a danger of the water itself getting polluted. So, आपसे मैं जानना चाहूँगा very briefly, probably in 2-3 minutes, is that having these challenges which you have observed currently, what should be the measures so that at the national level, at the macro level, all our efforts can become successful. राइट, थैंक यू डॉक्टर मिस्टर विश्वनाथ। तो इसमें एक दो चीज़ें मैं पहले इसमें ऐड करना चाहता हूँ आपके सवाल से रिलेटेड कि काम तो बढ़िया हो रहा है, जो अभी सीओ साहब ने भी कहा था कि हमको टेक्नोलॉजी पे मेजर फोकस करना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी कैसी हो जो रूरल एरिया में इफेक्टिवली काम कर सके। तो वो जो शहर में काम कर रही है, ज़रूरी नहीं है कि वो रूरल एरिया में काम कर सके। अगर हम इसको ऑब्जर्व करेंगे सेप्टिक टैंक को, तो जो रूरल एरिया में सेप्टिक टैंक बने हुए हैं उसका जो आउटलेट है, ओवरफ्लो है या जो वॉश आउट है, वो एकदम ओपन ड्रेन्स में बह रहा है, जो कि इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करता है। एक चैलेंज है, तो टेक्नोलॉजी वाला एक चैलेंज है। सेकेंड चैलेंज जो है हमारे लिए आज भी वो बिहेवियर से रिलेटेड है कि जहाँ पे लीच पिट टॉयलेट बने हुए हैं, जैसा अभी सीओ साहब ने बताया कि रूरल एरिया में अब बहुत सारी जगह पे सिंगल पिट है, वो हमारे सर्वे में भी आया है। तो उनको कन्वर्ट करना, रेट्रोफिट इज आल्सो वन ऑफ द चैलेंज, कि उनको कन्वर्ट करें, उनके बिहेवियर में लाएं। पहले क्या था कि वाटर सप्लाई ना होने से, पानी ना मिलने से और लोग यूज नहीं कर रहे थे, लेकिन अब पानी चूंकि हर घर नल जल योजना में, जल जीवन मिशन से जा रहा है, तो कहीं ना कहीं पे दोबारा एक बार रेट्रोफिटिंग की जरूरत पड़ेगी ताकि उनका इस्तेमाल हमारा दोबारा से हो सके। तो टेक्नोलॉजी एक पार्ट हो गया, बिहेवियर एक पार्ट हो गया। तीसरा जो आता है मेंटेनेंस वाला पार्ट, उसके लिए अभी हमारे प्रधान जी जो बता रहे थे कि यहाँ वहाँ से वो कोशिश कर रहे हैं। अगर हमें स्केलेबल मॉडल करना है
तो मिनिमम ऑपरेशन मेंटेनेंस के साथ कौन सा मॉडल हो सकता है जो फिजिबल हो। थर्ड एंड फोर्थ एंड लास्ट वन मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट इज मॉनिटरिंग सिस्टम। हम कोई भी ग्राफ देख रहे हैं कि एक बार हमने बोल दिया कि इस घर के अंदर हमने फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी, तो हम ये मान ले रहे हैं कि 100% यूजेस है। तो मॉनिटरिंग मैकेनिज्म अगर हम डेवलप नहीं करेंगे तब तक हम उसको ये नहीं बोल सकते कि कल जो चीज थी आज वो है कि नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस पे बहुत सीरियसली विचार करने की जरूरत है। और इस पे वाटर फॉर पीपुल ने एक काम करते हैं, हम लोग का एक एनुअल मॉनिटरिंग टूल है जिसके बेस पे हम एनुअली एक रैंडम सैंपलिंग करते हैं, बड़ा सैंपल साइज लेके, जो हमारे एरिया है जहां हम काम कर रहे हैं, और उसमें लेवल ऑफ सर्विसेज के इंडिकेटर्स को देखते हैं कि अगर आज हम 48 बोलते हैं कि 60% 70% लोगों को पानी मिल रहा है या सैनिटेशन की फैसिलिटी यूज कर रहे हैं, देन फिर हम उसके बाद अगले साल फिर देखते हैं कि वो नंबर अगर डिक्रीज तो नहीं हुआ और आइदर इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ। अगर इंक्रीज हुआ तो क्या रीजन रहे पॉजिटिवली, अगर डिक्रीज हुआ तो क्या रीजन रहे, देन दैट गाइड अस इन डेवलपिंग द प्लान फॉर कमिंग ईयर्स। तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। वरना प्रधान जी जो बोल रहे हैं, मॉडल तो डेवलप हो सकता है, स्केल कैसे होगा, लाखों ग्राम पंचायतों में जाना है। बहुत अच्छा काम किया है। बस उनके जो आपका लास्ट सवाल था उनसे कि इसको हम आगे क्या सोच के ले जा सकते हैं, वो जवाब बहुत प्यारा था कि हमको हर जगह पे कोशिश करनी पड़ेगी और आप जैसे लोगों ने जो मॉडल बनाया है उसको रेप्लिकेट करना पड़ेगा और इनके एक्सपीरियंसेस के बेस पे इनके जैसे लाइक माइंडेड लोगों को तैयार करना पड़ेगा और वो धीरे धीरे होगा। तो दैट इज माय थॉट। Thank you very much, Mr. Vakil Ahmed Siddiqui. Now I turn to Mr. Rituraj. One of the aspects you were talking while you were narrating your experience in Madhya Pradesh, and I thought it was extremely important, is that financial sustainability. हम सस्टेनेबिलिटी का बात करते हैं लेकिन पैसा अगर नहीं आएगा इन द लॉन्ग रन तो सस्टेनेबल नहीं होगा. So and beyond the schemes, beyond the yojanas, we have to think about it. And you were mentioning about your attempts to make the Panchayati Raj institutions sustainable in terms of they levying some tax on the services. So a was sector में जो ये of revenue as a revenue generation model from was services, particularly I'm saying in the context of the villages. How successful it has been in your case, and are there any kind of policy or regulation challenges if that has to be scaled up across the country? Yeah, thank you so much. Obviously, own source of revenue for Gram Panchayat is very critical, especially for Madhya Pradesh and similar states, because the government as of now is not going to fund for the HR that is going to be used for especially this cleanliness thing, because at least you need 4 to 5 human goes in every Gram Panchayat. That turns out to be a very, very huge number at the state level. So we need to work out a mechanism where we are able to sustain this large number of employees who are working actively on a daily basis to sustain cleanliness in the Gram Panchayat. And so we have we decided that taxation and user fee charges is going to be the way to sustain it. And in order to do that, we have obviously the laws in the Panchayati Raj Act of Madhya Pradesh are very clear, and we were supposed to just implement it. Nothing stops us to collecting taxes from the Gram Panchayat, and Gram Panchayats are completely empowered to levy any kind of charges and to collect it as per the Panchayati Raj Act. So the only thing that was required is we needed to collect it. So we established a system in my district. We have handed this process of collecting charges to all the SHG groups. In every Gram Panchayat, I have set up 2 women
employed 2 women known as, we have named them as tax sakhis here. They are member of the SHG groups, and they are given which they are they have done an MOU with the panchayat, the sarpanch and the sachiv, who are the panchayat's head nodal. So every this SHG, 2 members of SHG who are known as tax sakhis now, they have done a MOU and member of understanding with panchayats, every panchayat, where they are entrusted with the task of collecting all kinds of taxes in the Gram Panchayat. And we have been monitoring this process from the last 8 to 9 months, and it is quite successful. And I would say that in almost 9 months, we have been able to collect almost 2 crore rupees of taxes. So that's a huge achievement from 0 to 2 CR in last 9 months. It's a very great experience for me, and it is going on well. And we have uh, set up an incentive mechanism for this tax keys, where whatever taxes that they collect, 10% of that tax goes to them. So in a way, they are also incentivized to collect more taxes, and Gram Panchayat doesn't have to worry about paying them. So it is an incentive-based model where taxes are being collected by SHG members, and kind of it is a third party kind of tax collecting mechanism. So the chances of monitoring and kind of malpractices is very less, and we also monitor it through our NRLM department. So we keep monitoring them, and we have an online portal also as developed by the state government department for this thing. And so the mechanism for monitoring and overview oversight is quite good, and we have been focusing quite thoroughly on this process. So I think we are doing good, and it's a very great start for us. And I think in the coming times, if we, I think the people are also quite willing to pay the charges, especially the property tax that we collect. People are more than willing, because it kind of creates some kind of their possession over the property. And if so, we need to educate them properly, so people are willing to pay charges. And especially I would say water tax, because Nal Jal Yojana, that is getting implemented in most of the villages, so people are willing to pay water charges as well. And as they are seeing this cleanliness thing is happening, and door to door waste collection is has started in the villages. I would say almost 20% of the people as of now have started paying cleanliness taxes as well. So it's a very good start for us. We just need to sustain this momentum, and if we carry on, it will be a great source of revenue for the panchayats, where they're able to provide the kind of services that is required of them. Thank you. Thank you very much, Mr. Rituraj. I would like to go to Mr. Rathur. Similar kind of question, but I'm bringing it different angle here, Mr. Rathur. Yes. So you have been talking a lot about the role being played by the SHG members. And in a sense, Mr. Rituraj was also talking about similar kind of role being played by Panchayati Raj institutions. Also, we know for a fact that most of the SHGs, or almost all the SHGs, come under state rural livelihood mission, and state rural livelihood missions are under rural development department. So it is good to talk about institutional arrangement at the grassroots level, but at the same time, there might be challenges of convergence and collaboration among the different departments. So is it even then there is this technical department of PHED also there? I'm not very sure about in case of Chhattisgarh in rural area whether PHED is there or not, but in many states. So there are many departmental interfaces which have to happen, in successful manner to make all these efforts successful. So what would be your thought on that? Thank you, sir.
छत्तीसगढ़ में जो हम काम करते हैं, एसएचजीज को हमने स्वच्छाग्रही बनाया हुआ है, तो इसमें छत्तीसगढ़ में जो सैनिटेशन प्रोग्राम है वो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा ही इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। पीएचई इज अ सेपरेट डिपार्टमेंट। सो यहाँ पे चूंकि डिपार्टमेंट एक है, एनआरएलएम भी पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा ही उस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाता है, रूरल लाइवलीहुड मिशन को भी। सो यहाँ पे कन्वर्जेंस में इतना इशू नहीं होता है। इसके लिए हम स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसकी कमेटी बनी हुई है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कलेक्टर के चेयरमैनशिप में इसकी कोऑर्डिनेशन कमेटी फॉर्म है, जिसमें कि सभी डिपार्टमेंट्स के एचओडी उसमें होते हैं, जिसकी की मंथली मीटिंग शेड्यूल्ड होती है। और इसमें जो भी हमें कोऑर्डिनेशन में हेल्प चाहिए रहता है, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसका कोऑर्डिनेशन हो जाता है। स्टेट लेवल पर हमें जो, चूंकि पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में जो स्वच्छ भारत मिशन में मेजर कंट्रीब्यूटर स्कीम्स हैं, वो 15th FCA, एनआरएलएम है और मनरेगा है। सो ये तीनों ही स्कीम चूंकि छत्तीसगढ़ में पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा ही देखी जा रही है, सो इसमें इंटर डिपार्टमेंटल या इंटर स्कीम कोऑर्डिनेशन में इतना दिक्कत नहीं होता है। जो एसएचजीज हैं, इनको जरूर हम कोशिश किए हैं, ये अभी अंडर प्रोसेस है कि जो आईएसए के रूप में यदि पीएचई के जल जीवन मिशन में हम इनको इंगेज कर पाए, क्योंकि ये सैनिटेशन के लिए काम कर ही रहे हैं, वेस्ट कलेक्शन के लिए भी काम कर रहे हैं, आईसी का भी काम कर रहे हैं, और एमएचएम के लिए भी सैनिटरी नैपकिन्स का प्रोडक्शन और सेलिंग कर रहे हैं, तो इससे उनको एक इनकम हो रहा है। तो यदि ये वाटर के लिए भी पीएचई के जो जल जीवन मिशन है उसमें काम कर सके, तो थोड़ा इसमें और सस्टेनेबिलिटी आ जाएगा, क्योंकि ये एक ग्रुप है जो कि काम कर रहा है छत्तीसगढ़ में, जिसको हम स्वच्छाग्रही स्व सहायता समूह कहते हैं। सो ये जरूर अभी एक इसमें प्रोसेस में है, लेकिन हाँ, इसमें इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन की यदि हम बात करें, तो अर्बन मिनिस्ट्री के साथ में जो फीकल स्लज मैनेजमेंट को लेकर के कोऑर्डिनेशन है, इसमें जरूर थोड़ा इशू होता है, क्योंकि जैसे कि गाइडलाइन भी सजेस्ट करती है कि जो अर्बन पेरिफेरी वाले विलेजेस हैं, उसको अर्बन के एफएसटीपी या एसटीपी से हम लिंक कर सकते हैं, बट जो कैपेसिटी है अर्बन के एफएसटीपी या एसटीपीज का, वो शायद इतना इनफ नहीं है कि वो आसपास के विलेजेस को भी लेकर उसको कैटर कर सके, क्योंकि इसको लेकर के हमने राउंड्स ऑफ मीटिंग्स किए हैं अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ में। सो देयर आर चैलेंजेस जो कि दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ में कोऑर्डिनेशन और इसके लिए होता है, लेकिन सेम डिपार्टमेंट में चूंकि मेजर जो कंट्रीब्यूटर स्कीम्स है वो पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट देख रहा है, सो उसमें उतना दिक्कत नहीं होता है। और इसमें जरूर मेरा एक पर्सनल जो सजेशंस हैं और इसमें ओपिनियन है कि यदि एक सिंगल वर्क कराए, यदि टैक्स कलेक्शन है, लोगों को मोटिवेट करना है, आईसी करना है, एमएचएम का एक्टिविटी करना है, प्लास्टिक कलेक्शन सेलिंग करना है, कंपोस्टिंग बनाना है, उसको सेल करना है, वेस्ट से कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाने हैं, इस तरीके का एक सिंगल एजेंसी जैसे एसएचजी है या ग्रुप ऑफ वुमेन है, उसको हम एंगेज करें, वही वाटर के लिए भी लोगों को मोटिवेट करे, वाटर रिचार्जिंग के लिए मोटिवेट करे, नल कनेक्शन के लिए मोटिवेट करे, वही टैक्स कलेक्शन के लिए करे। सो एक होलिस्टिक वे में अगर हम वाटर एंड सैनिटेशन एक्टिविटी को लेकर के विलेज लेवल पर एक पर्टिकुलर ग्रुप को या इंस्टीट्यूशन को या ग्रुप ऑफ पीपल को यदि हम कैपेसिटेट करें और उसको सभी ये जो वाटर एंड सैनिटेशन रिलेटेड जितने भी एक्टिविटीज है उसी से हम कराएं, सो मुझे लगता है कि ये शायद सस्टेनेबल हो सकता है, क्योंकि उसके लिए फंड्स की अवेलेबिलिटी भी मतलब ईजी हो जाती है और उसको सस्टेन करना भी आसान होगा। Thank you. Thank you very much. Now we open up for any question. So if the participants have any question, please you can raise your hands or you can unmute yourself and question. So there is a question from I think Chetan. चेतन आप अनम्यूट कीजिए और सवाल कीजिए। सर एक्चुअली मेरा सवाल नहीं है, फर्स्ट ऑफ मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं चेतन अत्रे हूँ और अभी WaterAid के साथ मध्य प्रदेश में फीकल स्लज का जो पार्ट है वो पूरे स्टेट को टेक्निकल सपोर्ट दे रहा हूँ।
तो जस्ट मैं कुछ चीजें एड ऑन करना चाह रहा था जो काली बिल्लो और FSTP के बारे में जो भी डिस्कशन हुआ था, सरपंच साहब ने काफी अच्छे से बताया था, और जो जैसे कि रुपेश जी ने और वकील सर ने बताया था, तो FSTP को लेके हम लोग जैसे काली बिल्लोद का ही हमारा थिक एलडीज का FSTP था, और इनिशियल स्टेज पे हमें यहाँ पे डिमांड नहीं आ रही थी प्रॉपर तरीके से। तो जो हम लोग एक सस्टेनेबल सिस्टम की जो बात करते हैं, वो हमें काफी चैलेंजेस यहाँ पे फेस करने पड़ रहे थे। तो यहाँ पे हमने एक प्रॉपर तरीके से एक डिस्लजिंग का प्लान बनाया था, और जिसमें हमने एक कॉल सेंटर भी स्थापित किया था। देन हमने अलग अलग लेवल पे पूरे कैलेंडर बना के हमने कुछ इस तरह का बिहेवियर चेंज का एक्टिविटी प्लान किया था, और उसका रिजल्ट ये निकला कि तकरीबन 3-3.5 मंथ का हमारा ये कैंपेन था, और इनिशियल स्टेज पे जहाँ पे हमें मुश्किल से महीने में 3 से 4 लोड मिल रहा था, ट्रक का लोड मिल रहा था, तो आज ये सिचुएशन है कि हमारे पास में अराउंड 15 ट्रक लोड पर मंथ हम लोग अचीव कर पा रहे हैं, और काफी अच्छे से हमारा प्लांट जो है वो सस्टेन कर पा रहा है। और मुझे यहाँ पे बताते हुए काफी खुशी होगी कि अभी हमारे बीच में ऋतुराज सर भी बैठे हुए हैं, और ऋतुराज सर ने वाटरएड के साथ अभी बात किया था कि वो काफी इंटरेस्टेड थे कि भोपाल में भी FSTP प्लांट के लिए वो थिंक आउट कर रहे थे। और मुझे बताते हुए खुशी होगी कि अभी सर ने जो है भोपाल की 2 लोकेशन बेरसिया और फंदा ब्लॉक के लिए हम लोग अभी प्रोसेस कर रहे हैं। और जैसे कि सरपंच साहब बता रहे थे कि सबसे बड़ा चैलेंजेस इसमें आता है वो व्हीकल के लिए, तो मुझे ये भी बताते हुए खुशी होगी कि ऋतुराज सर ने अश्योर किया है कि जो भोपाल को अभी अवार्ड मिला है और उस फंड का यूटिलाइजेशन वो गाड़ी के लिए करेंगे। तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि होप 1 या 2 महीने में या 3 महीने में हम भोपाल के साथ भी सक्सेसफुल 2 FSTP बनाने में सक्षम होंगे। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much. All the best, Chetan. Mrityunjay ji. Yeah, good evening. I am speaking from Aga Khan Foundation. Yes. Sir, my question is for Rupesh Rathore. Sir, as communicated by Rupesh ji that they are working in 3 regions. In northern part, Sarguja has progressed with solid waste management, and also many kind of innovative models has been established there. So because Bastar region, I think in Bastar region also many kind of innovation has been done. But why this movable bio toilet was essential? Because the people of Bastar have many local available materials and many innovative technology. Okay. Let him answer it. You have put the question. Let him answer. Right. रुपेश जी आप अनम्यूट कीजिए आपको। थैंक यू मृत्युंजय जी। एक्चुअली जो मूवेबल बायो टॉयलेट्स है, दैट टॉयलेट्स वाज ओनली फॉर द LWE severely LWE affected areas. As you are aware, in the country there are only 917 villages are left out to be declared as ODF. So there are 917 villages where no one can go and do the any kind of activity, construction related activities. So therefore we have thought of to provide some kind of toilet facility because the construction was not possible there. So that is why there was a need of providing the movable bio toilet so that they can understand there is a what kind of toilets are actually available and how they can use it, what are the benefits of the using the toilets, so that they can go ahead with construction of individual toilets. So this was the need of movable toilets. And one more thing I would like to add, we have also provided this kind of movable bio toilets in each of the blocks to actually cater the community gatherings. So there are a lot of community gatherings happening, like marriage and government programs are actually being organized by the government. So there are a lot of people comes from the village areas, so there are requirement of toilets. So somewhere it is very useful and needy that some movable toilets should be available. So we have provided one bio toilets, movable bio toilets to the
every block. So 146 blocks having the bio-toilet facilities, movable bio-toilets, and they are actually very helpful to ensure the ODF sustainability. Just one more point. Who is in charge of doing the operation and maintenance part of the movable toilet? Can you? Yeah, actually, we have given the responsibility of operation and maintenance of the bio toilet to the CO Janpad, and we have given the guidelines for the operation and maintenance and the taxation system for the usage of bio toilets. If someone takes it for their public gathering or community gathering, so they have to pay some charges for availing this bio toilet facility. So this is the some revenue generation model is there. With this fund they are using it and maintaining the toilets. Thank you so much, Rupesh. Thank you. Thank you, Mrityunjoy, for your interesting question, and thank you, Mr. Rathur, for your response. Now, Mr. Anurag Gupta. सभी स्पीकर्स को नमस्ते। मेरा प्रश्न वकील जी से है, फ्रॉम वाटर फॉर पीपल। प्रश्न मेरा ये है कि आपने एक मेंशन किया था पिट लाइफ एक्सटेंडर जो है, आवाज ब्रेक हो गई अनुराग जी, आपकी आवाज थोड़ा सा ब्रेक हुई है। अच्छा, मैं बस फिर से रिपीट करूंगा कि एक जो पिट लाइफ एक्सटेंडर के बारे में थोड़ा सा जानना चाह रहा था कि हाउ इट वर्क्स, मतलब जैसे 80% ऑफ सेप्टिक टैंक इज फिल्ड विद वाटर, तो क्या ये सिर्फ डीप वाटर करता है या डिसइंफेक्ट करके इट एक्चुअली डिस्पोजेस द वाटर? राइट, तो इसको डिसइंफेक्ट करके वाटर को निकालता है। एक डिवाइस तैयार किया है वेस्ट बंगाल में, जादवपुर यूनिवर्सिटी है कलकत्ता में, उसके साथ हम लोग MOU किए और ये अराउंड हमको 4 साल लगे इसको रिसर्च को करने में। और रेगुलर टेस्टिंग के बाद उसमें डिफरेंट चैलेंजेस आए, डिफरेंट फिल्टर मीडिया यूज करके उसके मेम्ब्रेन बेस कराए, फिर सेरेमिक बेस कराए, देन अल्टीमेटली अब वो इस शेप में है कि हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। एक पूरा फुल इक्विपमेंट है जिसको पिट के ऊपर इंस्टॉल कर दें, लगा दें थोड़ी देर के लिए, तो पानी का फ्लो भी उससे हमारा बढ़ गया है। और जो वाटर टेस्ट रिपोर्टिंग उसकी बराबर कराते रहे, तो पहले उसमें कुछ फीकल स्लज आ जाता था, फिर उसके बाद कुछ और आना शुरू हुआ। देन अल्टीमेटली जो लास्ट हमारा 4-5 महीने पहले, 3-4 महीने पहले टेस्ट हुआ वाटर, वो ऐसा वाटर है कि हम लोग उसको बोल सकते हैं बिल्कुल सेफ है, ओपन ड्रेन्स में उसको छोड़ा जा सकता है। तो उसमें फिल्टर मीडिया भी, फिल्ट्रेशन यूनिट भी लगा रखी है और उससे वाटर क्वालिटी को भी कंट्रोल करते हैं। तो वो सेफ वाटर बाहर निकल रहा है, उससे पॉल्यूशन फ्री है, वो चेक उसमें किया गया। और उसका फ्लो रेट इसलिए चेक करना पड़ रहा था कि बार बार जब उसमें मेम्ब्रेन लगाते थे तो फीकल स्लज की वजह से चोक हो जाता था। तो डिफरेंट साइजेस के मेम्ब्रेन टेस्ट करके अल्टीमेटली अब वो इस लेवल पे है कि जिसको हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। इसके पीछे एक वजह निकल के आई थी अनुराग जी, कि अभी जो हमारे ऋतुराज साहब का जो सवाल था या जो उन्होंने एक सुझाव दिया था, तो हम लोगों ने इस पे थोड़ा अप्रोच ये बनाई है कि कब तक हम लोग, व्हाई नॉट मार्केट सिस्टम डेवलपमेंट अप्रोच। आज अब उबर बुक करते हैं, ओला बुक करते हैं, एक फोन कॉल पे सब हो जाता है। तो इसी तरह के अगर हम लोगों के पास टेक्नोलॉजी आ जाए और मार्केट में कोई भी इसको ओन कर ले, जिसको सफाई की जरूरत है, एक कॉल करें, नंबर हम लोग उसको सब जगह पे, हम मतलब जो भी उसको यूजर ग्रुप हो वो उसको अपना आप डाल दे, तो लोग अपने आप वो लेके आए, इंस्टॉल करें, क्लीन करें, फिकल स्लज निकालना है स्लज निकालना है, उसको पानी निकालना है पानी निकालें, और वो चले जाएं। जो यूजर है जिसको साफ कराना है वो आसानी से पे कर देगा। अगर हम उनको बोलते हैं कि नहीं आपको 15 रुपए 10 रुपए देना ही है, तो शायद थोड़ा चैलेंजिंग लगता है कम्युनिटी में, स्पेशली सैनिटेशन रिलेटेड कामों के लिए। माइंडसेट आज भी बहुत सारे एरिया में, जो मृत्युंजय का सवाल था उस बेल्ट में, या जो रुपेश जी का जवाब था, तो लोग प्रेफर करते हैं कि कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास तो बहुत ओपन लैंड है, बाहर चले जाएंगे, हम पे क्यों करें। तो वो मैकेनिज्म डेवलप करने पे अप्रोच है, जिसको हम लोग मार्केट एग्रीगेटर मॉडल बोल के उस तरह के इक्विपमेंट को तैयार कर रहे हैं। होपफुली नियर फ्यूचर में अगर वो चल गया तो उसको मार्केट में डाल देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बहुत एक इनोवेटिव अप्रोच है, अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो इट इज वैसे इसमें एक और ऐड कर दूं, अगर आधा मिनट 30 सेकंड अलाउ करते हैं विश्वनाथ जी। ओके हाँ, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इसी फिकल स्लज को लेके युगांडा में
ब्रैकेट्स बनाए हुए हैं केक, और जितना फीकल स्लज निकलता है पानी निकाल के उसको कंप्रेस करके उसमें से छोटा सा वो बना देते हैं, ब्रैकेट्स बना के उसको जलाने के लिए लोग यूज कर रहे हैं। तो वाटर फॉर पीपल के सपोर्ट से वो काम वहाँ पे हुआ है। जस्ट टू ऐड ऑन दिस वन। Sorry, So please, I think with please. this we come to end to the question answer session, and to conclude the program I would hand over to my colleague Purnachandra Mohanty. Thank you very much. Thank you all. Means thank you वकील अहमद जी, आपका जो इंसाइट रहा, मतलब इनसाइड इंडिया, इंडिया कॉन्टेक्स्ट में, और इवन इंटरनेशनली ऑल्सो, यू हैव पुट सम गुड एग्जांपल्स, and you have also told us what are the examples that are viable and उसको कैसे स्केल अप किया जा सकता है. दिस इज एक्चुअली नीड ऑफ द आवर, और ये डिस्कशन का भी इसके ऊपर और भी डिस्कशन होना चाहिए. दिस इज जस्ट वी हैव स्टार्टेड दिस, लेकिन और रिगरसली डिस्कशन होना चाहिए अगर हम लोग ODF सस्टेनेबिलिटी का अप्रोच रखें. थैंक यू वेरी मच फॉर योर इंसाइट. थैंक यू मिस्टर ऋतुराज जी, आपने बहुत अच्छी तरह से काम किया है. हम लोगों ने बहुत आपके बारे में सुना है, जो जैसे आपने ट्रिगर वहाँ पे लीडरशिप, आपका लीडरशिप में जो काम हुआ है वहाँ पे, it has been set an example in the total district, that the way, the methods, the models that you have created, models not exactly the infrastructure models, but the models in terms of the software models, those are highly appreciable, and this can be replicable. जैसे आपने बताया कि आपने एक के बाद एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में, अभी तक जो टॉयलेट टेक्नोलॉजी में आपने जैसे अप्रोच रखा है, आई थिंक दिस इज ऑल्सो नीडेड. ये हम लोगों को आगे जाके काम आएगा इस तरह का स्ट्रैटेजी अप्रोच लेने में. रुपेश जी, आपने बहुत अच्छी तरह से छत्तीसगढ़ का इशू का प्रेजेंट किया. छत्तीसगढ़ का इशू कुछ हद तक कंट्री का इशू को भी हाईलाइट करता है. अगर हम देखें द टेरेन, ज्योग्राफी और जो क्लाइमेट वहाँ का है, वो कुछ हद तक और भी कंट्री का इशू को हाईलाइट करता है. तो थैंक यू वेरी मच हाईलाइटिंग ऑल दोज इशूज एंड शेयरिंग योर एक्सपीरियंस दैट छत्तीसगढ़ में कैसे अच्छी तरह से आपने पॉलिसी में भी काम किया, और आपने वो इम्प्लीमेंटेशन भी काम किया, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में भी काम किया, एंड अभी तक जो प्रोग्राम है उसको एक स्केल के लेवल में लिया है, एंड आगे भी आप इसी तरह यू आर एक्सीलरेटिंग. एंड थैंक यू वेरी मच गणेश परमार जी, आपने तो पहला FSTP वहाँ पे करवा दिया, और आप अभी भी आपका विजन है कि उसी तरह FSTP, हमारा रूरल FSTP बना रहे सारे जगह में. तो हम लोग आगे भी, हम लोग जो जितने लोग काम करें आगे भी उस तरह लेके जाएंगे. थैंक यू ऑल द पैनलिस्ट फॉर योर एनरिच्ड थॉट्स, sharing your enriched thoughts and everything. We also thank to my colleagues, my friends who have joined this webinar, who have shared their view. Some of them have shared their view, some of them also have participated in the questionnaire. And I think this is a very enriched discussion. This is not the end, this is the beginning, and we will take forward this discussion in the future days in some other way and in some more prospective manner, and we will make it a fruitful discussion आगे जाके we can make it. Thank you Vishwanath ji for moderating, बहुत अच्छी तरह से moderate करने में, and my colleague Amulya supporting in presenting this thing. Thank you all. Thank you very much. Over to Vishwanath ji. Thank you very much. Thank you. Thanks, everyone. We can conclude now. Thank you. Thank you, sir. Thank you, everyone. Thank you. Thank you.